और फिर कहते हैं लड़की को गाड़ी चलानी नहीं आती। ओ माय गॉड, जल्दी भागो। और क्या बेड के ऊपर है। चलाई चूड़िया। आई एम सिटिंग ऑन टू टेबल। इससे लड़ाई हो गई थी इस चक्कर में। Hi guys, good morning. Welcome or welcome back to my channel. This is your brown girl and welcome to yet another vlog. And this vlog is पहले इस vlog के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मैं पिछले vlog के बारे में बात करती हूँ. तो my previous vlog was a shoot vlog and the people who appreciated my work, thank you so much. I am trying to be consistent in making vlogs and तभी मैं ये second vlog लेकर आई हूँ. second नहीं, I think मेरे channel का 4th vlog होगा. पहले I used to make haul videos क्योंकि haul videos में मुझे ज़्यादा मज़ा आता था, but actually I'm exploring, मुझे vlogs में भी मज़ा आ रहा है and you guys are appreciating my vlogs also. So I am making vlogs. So this vlog is gonna be about work vlog, like a work chill kind of a vlog, and I'm going out and मैं बाहर जाके काम करूँगी क्योंकि बहुत टाइम से मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है वर्किंग एट होम एंड मे बी इट्स अ क्रिएटिव लाइक अ ब्लॉग और समथिंग, ऐसा बोलते नहीं है कि मैंने पढ़ा था कि बाहर जाने से क्या मतलब लाइक क्रिएटिविटी बूस्ट होती है या प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है, ऐसा कुछ है क्या. तो मतलब मैंने चैट जीपीटी को पूछा तो चैट जीपीटी ने बोला कि हाँ ऐसा होता है कभी कभार, हम जब बहुत ज़्यादा घर पे काम करते हैं या बाहर नहीं स्टेप आउट करते तो हमें थोड़ा सा ब्लॉकेज फील होता है या वी फील लाइक वी आर नॉट अकम्प्लिशिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स या हम वी आर नॉट डूइंग इनफ और सम दीज सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स वी स्टार्ट फीलिंग. ठीक है, इसलिए आई एम फीलिंग टू गो आउट एंड वर्क. एंड आज मौसम भी अच्छा हो रहा है, कल बारिश हुई थी यहाँ पे. सो या बाय द वे आई वॉज रीडिंग दिस. ओए बहुत ज़्यादा मच्छर है यहाँ. By the way, I was reading this book called The Mountain Is You. It is so freaking good book. I am feeling like कि ये मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ी अपने स्कूल टाइम पे, ये क्यों नहीं पढ़ी. This book is so good. Like in this book, actually there is a problem and a solution. Like issue है तो how to resolve this, like a practical ways and not emotional or theoretical ways. And I really love this बुक. दैट्स द रीज़न. क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक्स ऐसी भी पढ़ी हैं जिसमें सिर्फ इमोशनल वेज या ऐसा हो जाएगा ऐसा कर लो, मतलब कुछ प्रैक्टिकल नहीं रहते हैं. एंड आई लव प्रैक्टिकल थिंग्स यू नो. तो ये चीज़ मुझे इस बुक के बारे में इसलिए अच्छी लगती है. एंड आई एम जस्ट गोना रीड वन पैराग्राफ फॉर यू ऑल. मुझे बहुत ही अच्छा लगा. अभी रिसेंटली में आई जस्ट like read this para, so I'm going to read it again. ठीक है, listen it carefully everybody. You are not the person you were 5 years ago. You evolve as your self image does, so make sure that it's an accurate one. Give yourself credit for everything you have come that you never thought you would, and everything that you built that you never thought you could. You have come so much far than you think, and you are so much closer than you realize. I really love this line. Like every time I feel like I am not enough, maybe I have not done enough, maybe you know I think that कि मुझे और चीज़ें कुछ करनी चाहिए या मैंने इतना कुछ अभी नहीं उखाड़ा है लाइफ में, ऐसा कुछ अगर मुझे फील होता है like not enough feeling, तो I go back to this para and I read it again and again. And this is something which I felt like yeah actually मैं 5 years ago Moni was totally different, not a bit, totally different. Like मेरा thought process, the way I used to think, the way I used to perceive things, my perspective, everything was totally different, and the way I look also. And now 5 years after, तो हमारे में 5 years डिफरेंस, लाइक अगर हम 5 years से अपने आप को कंपेयर करें, सो देयर
is actually a lot of difference. If we compare our 5 years from our younger self, तो हमारे में बहुत difference आ जाता है, but हमें वो realize नहीं होता because day to day हम increase, मतलब हमारे चीज़ें बढ़ती जाती है और हमें वो realize नहीं होता है basically, ठीक है. तो if you feel that you're not enough, or if you feel that you're not doing enough, or you've not done anything, so compare yourself from your 5 years younger self, ठीक है. And write it down that what exactly you were 5 years ago and what exactly you are 5 years now, ठीक है. Write that what patterns you had, what thought process you had, what things you have now, ठीक है. वो चीज़ें लिखना start करो and then you will start getting the clarity. So this is some thing which you can call it as a reminder or a solution as I found, so I thought of sharing it with you guys also. तो ठीक है, चलो अब मैं जाती हूँ. कितना बज रहा है? It's 11:03. एक तो छिपकली एंड चीटे ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं. लाइक आई हैव नो पर्सनल ग्रजेस, बट छिपकली भाई, कल रात में छिपकली हमारे फॉल सीलिंग के ऊपर आ गई थी एंड आई वॉज लाइक भाई साहब यहाँ कहाँ क्या कर रही है, मैं सो रही हूँ मेरे ऊपर ही गिर गई. दैट इज़ सो वियर्ड टू इमेजिन. मैं रात भर सोई नहीं जब तक मैंने देखा नहीं कि वो उधर साइड चली गई, इसी साइड. एंड देन आई डिस्कवर्ड दिस थिंग कि छिपकली इज़ कोल्ड ब्लडेड. तो अगर कभी छिपकली आए और आप एसी चला दो या इतना ठंडा कर दो कि वो भाग जाती है. एंड इट एक्चुअली वर्कड. हमने मेरी बहन फ्लैश लाइट ऐसे ऐसे मार रही थी उस पर, बिकॉज वी डिडंट हैड वो क्या होता है जो पॉइंट्स, लेज़र. वी डिडंट हैड लेज़र, तो हम फ्लैश लाइट का इस्तेमाल कर रहे थे. एंड देन आई स्विच्ड ऑन द एसी और एसी से सच्ची वो भाग गई. मैंने डायरेक्ट फ़ैन उसकी तरफ कर दिया, वो भाग गई. तो यार दैट हैपन. बट छिपकली बहुत ज़्यादा हो गई, इसलिए मैं बालकनी में भी नहीं बैठ पा रही क्योंकि बहुत छिपकली हो गई हैं. तो बस चली जाए, बहुत हो गया इनका. ठीक है, चलो चलते हैं. व्हाट्स द टाइम? इट्स 11 in the clock एंड लेट्स गो. लेट्स हैव ब्रेकफास्ट. आज मम्मी छोले भटूरे बना रहे हैं. चलो जल्दी लेट्स टेक बाथ. एंड आई एम थिंकिंग टू वॉश माई हेयर ऑल्सो बिकॉज वी हैव टू रिकॉर्ड द पॉडकास्ट ऑल्सो. तो आई विल वॉश माई हेयर. मैं पहले सोच रही थी कि ना करूं, बट देन आई एम थिंकिंग टू डू इट बिकॉज पता नहीं क्यों यार मानसून में बहुत ही ज़्यादा बाल ग्रीसी हो जाते हैं एंड 2 दिन बाद ही इट फील्स लाइक टू वॉश योर हेयर. बट क्या ही कर सकते हैं. चलो ओके, बाद में बात करते हैं. अब लेट्स फटाफट गेट रेडी एंड हैव माई दिस इज अ वेरी बेकार insects. Bye guys, I'll catch you later. Bye. Okay, so I have taken bath and that's what I am wearing today. मेरा जीन्स पहनने का बहुत ज़्यादा मन है क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया जीन्स पहने हुए. तो I was thinking to wear jeans and my top. This top is so cute. I really love this ribbon जो कि मैं बांध नहीं पाई हूँ सही से. But yeah, it's just fits so well. I love the fit. I don't know ये क्यों होता है हर टॉप्स में. I seriously don't know. अगर मैं इसमें अपना आर्म्स भी डालूँ तो भी मेरा आर्म्स फंस जाएंगे. बट आई डोंट थिंक दिस इज़ ऑफ एनी यूज़. तो मैं इसको अंदर डाल देती हूँ. बेस्ट है. अब फटाफट आई विल डू मेकअप एंड आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट एंड देन आई विल कैच यू. इसमें मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल मूड नहीं था बात करने का और आपको पता चलेगा क्यों. Just wanna take a moment and wanna appreciate my hair. मेरे बाल से मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं. गाइज आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही है. मैंने इसलिए माइक यूज़ कर रही हूँ. मैं अपनी लीड लाना भूल गई हूँ. तो आई हैव डन ब्रेकफास्ट एंड मैं निकल चुकी हूँ. दिस इज़ माई आउटफिट. मैं क्लिप्स डाल दूँगी एक आध जो मैंने ली हैं आउटफिट क्लिप्स. बाकी मेरी इससे लड़ाई हो गई थी. इस चक्कर में मुझे गुस्से की वजह से मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया. मैं नहीं आने वाली थी, मेरा इतना गुस्सा आ गया था. फिर उसके बाद ये मुझे मनाने आई और अब जाके इस लड़की ने मुझे सॉरी बोला. तो यही था, इस वजह से मैं आपको जब निकल रही थी तब कुछ भी मतलब मैंने शूट नहीं किया. मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप मेरा मुंह देख के समझ सकते होंगे कि मैं कितने ज़्यादा गुस्से में थी. बट अब क्या ही कर सकते हैं, गलती ही इसकी थी. गलती भाई देखो, गलती करो.
चुप रहो, गलती करो ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि गलती करना बुरा है, गलती करो बट उसके बाद सॉरी तो बोल सकते हो ना, तुम सॉरी बोल देते, मैं कुछ नहीं कहती, मैं इट्स ओके बोल देती, बस दैट्स इट। लेकिन इस लड़की में इतना एटीट्यूड आ गया था कि ये सॉरी भी नहीं बोल रही थी, तो मुझे इसलिए गुस्सा आया कि भाई सॉरी तो बोल दे यार। अब सॉरी बोल देती तो मैं अच्छे मुंह से आती, मैं और रिकॉर्ड कर लेती, बट चलो अब कुछ नहीं। अब हम रास्ते में हैं एंड वैसे मैं कार से आने वाली थी बट मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब था कि मैं कार से फिर नहीं आई क्योंकि मम्मी को डर लग जाता है, तो इस वजह से मैं अब इससे आई हूँ, वो ऑटो रिक्शे से। आप देख सकते हो मेरी हालत, और ना मेरे को आंसू भी आ गया था, तो इस वजह से आंसू क्या आने वाला है, अच्छा वो, हाँ मैं आपको क्या बताई थी, देखो मेरा आंसू आ गया था तो थोड़ा सा मस्कारा फैल गया, अच्छा है मैंने वॉशेबल नहीं लगाया, नहीं तो सब रीडू करना पड़ता और शायद फिर मैं नहीं आ पाती यहाँ पे। तो आज मेरा चॉइस सही था वाटरप्रूफ लगाने का, नहीं तो वैसे मैं वॉशेबल ही लगाती हूँ। एंड मेरे बाल बहुत ज़्यादा मुंह में आ रहे हैं, हम अभी से डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कहाँ बैठेगा, और मुझे सोफे वाली सीट पे बैठना है, और मैंने अभी से कह दिया है कि मैं सोफे पे बैठ गई। दैट वॉज लिटिल क्रेजी। तो ये पहले जा रही है अपना कोई काम करने एंड मैं जाऊंगी डायरेक्ट कैफे, मैं डायरेक्ट काम करती हूँ क्योंकि बहुत सारा काम है एंड आई जस्ट नीड टू स्टार्ट ASAP, ओके। बट चलो अब मैं जब पहुंचती हूँ मैं फिर आपको बताती हूँ क्या हुआ, ठीक है, चलो ओके बाय बाय। आई हैव रीच्ड हॉर्न्स। गाइज आई एम इन द कैफ़े एंड मैंने सीट ले ली है। यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा रश है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल सैटरडे संडे की वजह से, बट लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड गेट बैक टू माई वर्क। तो चलो लेट्स स्टार्ट। और मैंने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है, वैसे तो मैं छोले भटूरे खा के आई हूँ बट स्टिल कॉफ़ी इज़ फॉर एवर लव। तो मैंने कैपेचिनो ऑर्डर प्लेस कर दिया है एंड जब तक वो बन रही है जब तक आई स्टार्ट विथ माई वर्क। Thank you. So I have to complete these many tasks for the day and ये वाले तीनों टास्क अगर मैंने 2 भी कर लिए तो भी बहुत है। To work and I'm all comfortable। आज थोड़ा chaos है यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। मैं earphones लगाती हूँ and let's start। मैंने ये पूरा रीमेक कर लिया इनका टेबल, क्योंकि मुझे 4 की टेबल नहीं मिल रही थी तो आई एम सिटिंग ऑन 2 लोगों वाली टेबल। सो मैंने इनका पूरा टेबल रीमेक कर लिया और अब लेट्स स्टार्ट इट। जब तक मेरी बहन आती है आई विल गेट 1 टास्क कंप्लीटेड, दैट्स व्हाट माय गोल इज। अब मैं माइक को रख रही हूँ एंड आई एम जस्ट गोना कंसंट्रेट ऑन माय वर्क, ओके, एंजॉय। खाली हो गया है मेरा स्पेस जहाँ मैं बैठी हूँ, फाइनली थोड़ा सा चिक-पॉं बंद हुई। एंड ऑल्सो आई हैव फॉरगॉटन माई स्पेक्टिकल्स, तो मेरे आँख में भी थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है बट it's okay. My laptop looks really aesthetic, that's what I feel. Wait, let me show you my stickers. हाय कितना aesthetic लग रहा है मेरा laptop. I really love to put stickers and everything. And to be honest, I'm really loving working out. Actually मैंने सुबह बताया था आप लोगों को कि when you feel bored, when you feel blockage while working at home, you should come to a cafe and work there. It really is boosting my mood. एक तो मैंने कॉफ़ी पी ली है, दूसरा I am working in a cafe की vibe, you know, environment, वो थोड़ा कुछ तो difference होता ही है obviously, you know. I hope
डिस्टर्बेंस ना आ रहा हो मेरी वॉइस में। इसका ऊपर का वो खो गया है, मुझे नहीं मिला। मैंने इनफैक्ट जो स्वीपर था उससे भी पूछ लिया, बट वो उसने भी ढूंढा, नहीं मिला। अब लेट्स सी कहाँ रहता है, कहाँ चला गया। Oh, also, this lip gloss by Fay Beauty is so good, like so good. Wait, let me show you how it looks. Can you see the tint and the gloss? I really love the formula and the consistency and the stain of this lip gloss. Too good. वाह, गिर गई. Yay, I have done my first task. Check. Tonight the music seems so loud. I wish I could choose it loud. It's better this way. We love each other. To say guilty pleasure. मुझे गाना आता नहीं है, but ये गाना बज रहा है. I really love this song. Task number 2 is yes. Let's start. गाइस, मुझे काम करते करते एक शायरी याद आ गई है, तो चलो मैं सुनाती हूँ. अर्ज किया है, ना इश्क करो झूठा, ना प्यार करो फर्जी. ना इश्क करो झूठा, ना प्यार करो फर्जी. आगे नहीं बताऊंगी, मेरी शायरी मेरी मर्जी. आ गई महारानी, आ जाओ आ जाओ, बैठो. जल्दी जल्दी कुछ कुछ ऑर्डर कर लो, नहीं तो ये भगा देंगे हमें. मैं जब से बैठी हूँ यहाँ पर 2 घंटे से, वो बार बार मेरा मुंह देख रहे थे कि कुछ करें ऑर्डर. और अब कॉफी के बाद मैं क्या ऑर्डर करूँ? छोले भटूरे. चलाई छुरिया. गाइज, अब मैं इसके लिए टैरो रीडिंग करने वाली हूँ बिकॉज आई एम इन माई मूड. Okay, so finally guys, I have completed my second task also. Okay, now I think ये third task मैं घर जाके करूँगी. It's already 4:50 and I have to leave because today is a podcast day. We have to record podcast and this is my sissy जो आप देख ही चुके होंगे अभी तक. तो चलो अब घर चल के काम करते हैं. Okay, I feel already very confident and to be honest I feel so good after doing a tarot reading for my sister. आज के लिए she took a reading with me and that was very random. मेरा कुछ ऐसा plan नहीं था, but she asked me so I did it for her and I already feel so happy and confident. And even one more thing, I just manifested something today and it has already been manifested. I'm so happy. मौसम तो ठीक ठीक ही है बाहर ना, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी है. गाइस, ये देखो कितना स्पूकी लग रहा है. दिस इज वेरी स्पूकी. ओ माय गॉड, जल्दी भागो. अच्छा, हाँ 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 भैया. अच्छा, तो आप वहीं के रहने वाले हो? अच्छा, मकान बने, चलो बढ़िया है. हाँ, तो अच्छा. तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ. ये एक ऑटो ड्राइवर हैं और ये अपनी लाइफ के बारे में मुझे बता रहे थे कैसे ये अपनी फैमिली के नीड्स पूरी करते हैं, कैसे इन्होंने अभी तक के स्ट्रगल किया है, कैसे ये अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं. और बाय गॉड, इनको देखकर मुझे इतना तरस और बहुत बुरा लग रहा था देखकर. एंड ही वॉज लुकिंग वेरी 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 अनहेल्दी. एंड मेरे को इनकी स्टोरी सुन के इतना इंस्पायर्ड फील हुआ और लगा हम जहाँ हैं बहुत अच्छी जगह पे हैं, हमें ग्रेटफुल फील करना चाहिए और ना कि शिकायतें करनी चाहिए. आज मौसम कितना सुहाना है,
हैं। ये इसका रिएक्शन ऐसा हो जाएगा कि ये क्या चूतिया आप है। चलो बस ज्यादा नहीं, बाय 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 बाय। नहीं, बात उसकी नहीं है, लोगों को नहीं पता रहता, फिर ये लोग बोलने लग जाते हैं। अरे यार लो भैया, लगा ली सीट बेल्ट। ओके गाइस, so I have recorded the podcast and मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके वापस से जा ही रही हूँ। आज थोड़ा सा व्लॉग में आवाज फ्लक्चुएट हुई होगी, अब मैं एडिट करूंगी तो मैं देखूंगी क्या क्या मैं काट सकती हूँ और क्या क्या नहीं। बट हमें रास्ते से राखी लेनी है ना। अरे भड़ रहे हैं भैया, सब्र नहीं है लोगों ने। यहाँ पूछो, ले लो यही ले लो एक। ये देखो, इनको कोई फर्क ही नहीं है, चले आ रहे हैं। भाई लोग ऐसे चलते हैं सड़कों पे कि उनके बाप का राज है, और फिर कहते हैं लड़की को गाड़ी चलानी नहीं आती। लड़कियां तो ऐसी गाड़ी चलाती आंख बंद करके। चला भी रहे हो, चल भी रहे हो, पहले खुद को देखो। मेरे से बकवास मत करना, चपेट मारूंगी। थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग मी हियर। ओके सी या बाय। चलो। बाय द वे, आई गॉट दिस न्यू की रिंग फ्रॉम माय कार की। आई रियली लव दिस। एक्चुअली ये थी तो किसी और की, बट अब वो उसकी नीड नहीं है तो मैंने इसमें लगा दी। रियली लाइक इट। नो इट्स नॉट लाइक लबूबू। द डरावती की रिंग्स अच्छी लगती है जो ऐसे बचती है। मैंने लेकर चलो यो चलो बस बहुत हो गया बकवास कर। ओके, सो आई गॉट बैक होम एंड आई हैड माई डिनर बिकॉज आई वॉज फीलिंग हंग्री एंड आई फाउंड समथिंग। मैं दिखाती हूँ, रुको। ये दिख नहीं रही अब, इसमें चली गई अंदर। ये कल वाली ही चिपकली है जिसकी मैं बात कर रही थी। लिटरली ये फॉल सीलिंग के अंदर घुस गई है। अब ना ही हमें दिख रही है। भाई सामने तो दिख जाओ, एटलीस्ट हमें शांति हो कि तुम वहां हो। अभी तुम्हारा हमें नेक्स्ट स्टेप भी नहीं पता कि तुम क्या करने वाली हो। और मैंने फिर से कल वाली ट्रिक अपनाई है। AC ऑन, फैन ऑन एंड लेट्स सी बुझ जाती है कि नहीं। ये ट्रिक वर्क नहीं करी। एंड द थिंग इज दैट वो एकदम बेड के ऊपर है। भाई तू इधर आ जा यार AC के ऊपर।